Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the Spectrum series, the revision series from a Spectrum book, that is Modern Indian History. तो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब से आज हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं. So these series are going to be conducted for 3 to 4 days. In 3 to 4 days we are going to complete the most important topics from spectrum from the perspective of prelims. हम prelims के perspective से सबसे important topics जो हैं spectrum से वही cover करेंगे. We are going to cover the topic of utmost importance from where more questions have come in your UPSC CSE preliminary examination. Okay. So let's start the class without any delay. क्लास शुरू करते हैं without any delay. This is going to be a very important session for all of you. ये session आपके लिए काफ़ी important रहेगा. Holistically from prelims and mains perspective, the most important topics we are going to cover, and I am going to discuss mains related questions as well in the class. हम mains से related questions भी class में solve करने वाले हैं, ठीक है. So let's start the class. क्लास शुरू करते हैं. Also the class PDF will be uploaded on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. Let's start. Now before we start the class, here's a small announcement for all of you. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी announcement है that UPSC CSE GS Iconic Plus subscription, the batch prices are going to increase from 25th of Jan 2021. तो आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसेस हैं अनअकैडमी प्लस पर वो 25 जैन से हाइक होने वाले हैं, इंक्रीज़ होने वाले हैं. सो इट्स द करेक्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. Now what is this iconic subscription? In this subscription you will be getting a personal coach. इस subscription में आपको आपका personal coach मिलने वाला है. That is going to guide you right through your journey from prelims till interview. आपको prelim से interview तक guidance मिलेगी, आपको personal coach मिलेगा, and you will be also getting mains question and answer practice sessions. Regular practice sessions with personalized feedback will be given. Evaluation will be done. आपके answer sheets को evaluate किया जाएगा, then personalized feedback दिया जाएगा. Plus you will be getting a study planner also with experts guidelines. Experts will be tracking your daily targets. Okay, so you can get 10% discount if you subscribe today. अगर आप subscribe करते हो आज तो आपको easily 10% discount मिलेगा if you use this code Sharma20. Okay, after using this code you will be getting 10% straight away discount on your plus subscription. तो अपना आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए. द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गेट योर सब्सक्रिप्शन टुडे बिकॉज 25th of Jan prices are increasing. Okay, so let's begin the class. So we are going to start with the Spectrum series today, and first we are going to start with the advent of Europeans. Now when I say advent of Europeans, जब मैं बोलती हूँ advent of Europeans, advent means the coming of Europeans. When I say that, okay, write it down. When I say advent of Europeans. Also another feature of my classes is that I give the PDF free of cost on my Telegram channel. Class notes जो है मैं free of cost आपको Telegram channel पे दे देती हूँ. These are free classes. Class notes will also be free. Okay, but the another point is that you also have to make small notes simultaneously in the class. ठीक है, आपको मेरे साथ साथ क्लास में छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं. बिकॉज इफ़ यू इंगेज इन नोट मेकिंग ना, देन योर रिटेंशन पावर इंक्रीजेस. जब आप नोट मेकिंग करने लगती हो ना क्लास में, आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ती है, एंड यू फील इंटरेस्टेड. नींद नहीं आएगी क्लास में, यू विल नॉट फील स्लीपी इन द क्लास. ठीक है, सो यू विल बी एक्साइटेड टू टेक डाउन नोट्स. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग डाउन नोट्स विद मी. ओके, सो टेलीग्राम चैनल है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल फाइंड द क्लास नोट्स. ठीक है, ये इसको आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा चैनल. ठीक है, चलो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करने वाले हैं हम. ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मीन्स द कमिंग ऑफ यूरोपियंस, एंड हियर बाय यूरोपियंस आई मीन टू से ऑल द पीपल हु केम फ्रॉम यूरोप. यूरोपियन साइड से जो लोग आए थे उनकी बात कर रहे हैं हम. द पीपल हु केम फ्रॉम द साइड ऑफ यूरोप. सो वी हैड द फ्रेंच ऑल्सो, हमारे पास उस साइड से फ्रेंच भी आए हैं. वी हैव द डेन्स ऑल्सो, वी हैव द डच ऑल्सो, वी हैव द पोर्टुगीज ऑल्सो, देन वी हैव द इंग्लिश. इंग्लिश मीन्स द ब्रिटिशर्स. ठीक है, सो दीज वर द पीपल हु केम टू इंडिया. ये सभी लोग भारत में आए थे. ठीक है, एंड अमंग देम द इंग्लिश, they were the one who defeated all of these other Europeans and stayed back in India and ruled India. इनमें से ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, अंग्रेज, जिनको अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज तो ये सारे थे. ठीक है, ऑल ऑफ देम वर अंग्रेज. ठीक है, बट द ब्रिटिशर्स, they were the ones who stayed in India, who stayed back in India,
एंड दे रूल्ड इंडिया, इन्होंने भारत में शासन किया. एंड दे रूल्ड ओवर हियर नॉट टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ देयर नेशन, नो, देयर इंटेंशन वाज नॉट टू अपलिफ्ट अस. ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि वो हम पे रूल कर रहे हैं हमें अपलिफ्ट करने के लिए, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था. देयर मेन इंटेंशन वाज टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन फ्रॉम इंडिया. इंडिया वाज नोन एज द रिसोर्स रिच नेशन, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया थी भारत. एंड दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन. ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लूट पाट करके जाना चाहते थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को. सो दीज वर दी यूरोपियंस दैट केम एंड इंग्लिश ब्रिटिशर्स वर वन ऑफ दोज यूरोपियंस हु स्टेड बैक इनटू इंडिया, जो भारत में रुक गए और लूटपाट मचाई इन्होंने. एंड यू ऑल नो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडिया अंडर देयर रूल. इनके शासन में भारत का क्या दुर्गति हुई थी ये आप लोग जानते हो. ठीक है, सो नाउ देर इज अ थ्योरी, एक थ्योरी हिस्टोरियंस यूज करते हैं. हिस्टोरियंस दे यूज अ वेरी प्रोमिनेंट थ्योरी एंड दैट थ्योरी इज नोन एज 3G. उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, 3G बोलते हैं. It is said that the Europeans came to India, all these Europeans, they came to India because of this 3G theory. इस 3G theory के वजह से ये भारत में आई. So 3G was God, gold and glory. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, दीज वर द 3 रीजन्स वाई दे केम इनटू इंडिया. ये वो 3 रीजन्स थे कि क्यों ये लोग भारत में आते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट रीजन दे मेंशन, द हिस्टोरियंस मेंशन इज गॉड. हाउ गॉड कैन बी द रीजन, गॉड रीजन कैसे हो सकता है. गॉड इज द रीजन वाई टू प्रोफेस देयर रिलीजन, टू प्रोफेस और स्प्रेड, प्रोफेस की जगह आप लिख सकते हो स्प्रेड देयर ओन रिलीजन. ठीक है, दे केम टू इंडिया, दे केम टू द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, दे ऑल्सो वेंट टू इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे ये लोग. वाई, टू प्रीच देयर रिलीजन, अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए. To try to convert others into their own religion, to spread the authority of their religion, अपने religion की authority को spread करने के लिए they came to India. Point clear हो गया. To preach their religion, to spread their religion and to establish the domination of their religion. That was the first reason. That is why when the Danes came to India, ये जो आपके स्पेन से लोग आए थे भारत में, ठीक है, दे इन बंगाल, इन द एरियाज ऑफ बंगाल, ओडिशा, दे क्रिएटेड मिशनरीज, they created churches over here, missionaries over here. Why? To spread their religion. Okay, now coming towards the second reason is gold. So we all know that India was the mine of resources. India was known as the golden bird. ठीक है, हम सबको पता है कि भाई इंडिया को क्या कहा जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था. इंडिया was famously known as the golden bird. ठीक है, and that is why they came to India to loot this golden bird, for plundering, for extracting the resources, resources को extract करने के लिए, extracting the resources. ठीक है, from resource rich India. ठीक है, हमारे पास जितने भी spices थे, all the spices that we had, cotton that we had, ठीक है, they wanted to extract it, इसको extract करना चाहते थे. So second reason is gold. Now the third reason is glory. अब third reason आता है यहाँ पर glory. What do we understand by the term glory? Why glory is one of the reasons? Because they wanted to spread their name. ठीक है, अपने नाम को फैलाने के लिए, to spread their appreciation, to spread their praise, to spread their name, the name of their kingdom, the name of their companies. They were spreading their wings in the region अराउंड दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के अराउंड जो भी रीजन है, जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ ये अपना हक जमा रहे थे ताकि इनका नाम फैल सके. सो दैट देयर नेम, द नेम ऑफ देयर कंट्री, द नेम ऑफ देयर किंग और किंगडम कैन स्प्रेड. सो टू स्प्रेड देयर ग्लोरीज ऑल्सो दे केम टू इंडिया. नॉट जस्ट इंडिया, दे वेंट टू द नियर बाय और द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एज वेल. ठीक है, इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. 3G पॉलिसी समझ आ गई सभी को? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ दीज यूरोपियंस हु केम टू इंडिया. ठीक है, जब हम बात करते हैं द यूरोपियंस हु केम टू इंडिया, हु एंटर्ड इंडिया, तो फ्यू ऑफ देम वर, इनमें से कुछ थे जो प्रोमिनेंट थे, पोर्टुगीज, इंग्लिश एंड दी फ्रेंच. दीज वर दी प्रोमिनेंट वंस. द डेन्स एंड डच, दे लास्टेड फॉर फ्यू ईयर्स ओनली, कि कुछ ही समय के लिए इंडिया में थे. ठीक है, द फर्स्ट वन ऑफ देम वर, इनमें से सबसे पहले जो थे वो कौन थे, पोर्टुगीज थे. द फर्स्ट वन to come to India, to enter India, to establish their establishments in India, they were Portuguese.
ठीक है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द पोर्टुगीज फर्स्ट। मैंने क्लास के पीडीएफ में आपको मैप्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। इन द क्लास पीडीएफ आई हैव आल्सो गिवन यू द मैप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ये मैप्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स का जो झंझट है लोकेशन का वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ यू प्रिपेयर दीज मैप्स then there is nothing to fear for prelims, okay. So now we have Vasco da Gama, who was a shrewd businessman. He is the one who came exploring India. ये थे जो कि भारत को एक्सप्लोर करते करते यहाँ पहुँचे। So on 20th May 1498 you have to remember the year, day और date, month और date याद करने की ज़रूरत नहीं है। There is no need to remember the month or the date, but yes you have to remember the year, okay. So 20th May 1498 वास्को द गामा अराइव्ड इन इंडिया। ये आते हैं भारत। ही इज वास्को द गामा, अ वेरी फेमस बिजनेसमैन। ही वाज अ बिजनेसमैन, नॉट अ रूलर। ये रूलर नहीं थे, बिजनेसमैन थे। एंड ही कम्स टू इंडिया, ठीक है, फ्रॉम पुर्तगाल। अब ये आते हैं पुर्तगाल से भारत में, ठीक है। एंड व्हेन ही केम टू इंडिया, ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1498, ठीक है। एंड इट टुक हिम 2 years टू एंटर इनटू इंडिया। 2 साल लगे इनको। एंड दिस इज द केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर आप देखोगे, दिस इज द केप ऑफ गुड होप through which he entered into India. So this line you can see, this red line you can say it's the voyage, ठीक है, of Vasco da Gama towards India. ये वो रूट है जिसके थ्रू वास्को द गामा इंडिया में आते हैं। Now you will wonder, मैम he came from over here, पोर्तुगल से यहाँ आए, why did he not take the land route? ऐसे ही लैंड रूट से भी आ सकते थे। Why did he apply the sea route? ये सी रूट के थ्रू ही क्यों आए? Because the land route was blocked over here by the Turks, ठीक है। जो लैंड रूट था वो टर्किश लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ था, प्लस द अरब्स ऑल्सो हैड ब्लॉक्ड द लैंड रूट। ये जो लैंड रूट था इट वॉज ब्लॉक्ड फॉर द यूरोपियंस बाय द अरब्स वर ट्रेडिंग इन टू इंडिया। अरब्स जो थे वो तो भारत में ट्रेड कर रहे थे, they were trading full-fledgedly into India, but they were not allowing the Europeans to enter into India. Why? So that their competition can be eliminated, ताकि इन लोगों का जो आपका इनका competition है वो eliminate हो जाए। So the Arabs, they were not letting the Europeans, and Europeans were in great need to explore Indian market because it was said that India has rich resources of spices. भारत में जो मसाले हैं, spices हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच है, ठीक है। एंड द यूरोपियन कंट्रीज वर कोल्डर कंट्रीज, क्लाइमेट वाइज दे वर वेरी कोल्ड कंट्रीज। दे रिक्वायर्ड स्पाइसेस, उनका जो स्टेपल डाइट हुआ करता था वो मीट हुआ करता था। द यूरोपियंस, देयर स्टेपल डाइट इज मीट, एंड टू प्रिजर्व द मीट यू रिक्वायर स्पाइसेस। मीट को प्रिजर्व करने के लिए आपको स्पाइसेस की ज़रूरत होती है ना। So here also the Europeans, to preserve their food, they required spices, and they heard about India, that India is the mine of spices. So they went to India through the sea route because the Arabs, to eliminate the competition, they had blocked the land route. इन्होंने यहाँ से लैंड रूट को बीच में ही ब्लॉक कर दिया था, तो इन बेचारों को घूम कर समुद्री रास्ते के थ्रू भारत तक आना पड़ा। So when they were coming to India, जब ये भारत आ रहे थे, they also explored most of the continents of Africa. They also explored the Madagascar island. इन्होंने मैडागास्कर आइलैंड भी एक्सप्लोर किया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को भी एक्सप्लोर किया, एंड देन दे फाइनली रीच्ड इंडिया। दैट इज वाई वास्को द गामा ही टुक 2 years टू रीच इंडिया। 2 साल लगे इनको भारत आने में, ठीक है। बात समझ आ रही है? नाउ द रीजन इज क्लियर वाई ही टुक सो मच ऑफ टाइम टू रीच इंडिया। Okay, now the next important point is in India, where did he arrive? अब भारत में ये कहाँ पर आकर रुके? He stopped at Kerala, ठीक है। केरला का जो कोस्टल पोर्ट है वहाँ आकर ये रुकते हैं, ठीक है। And this was the first time that a European had arrived in India via the sea, के रास्ते से, ठीक है। It was the first time that a European had entered into India. So for Indian people also it was a shock, it was a surprise. एक तरीके से भारतीयों के लिए भी एक नई चीज़ थी, ठीक है। So it is said that Vasco da Gama, he is credited with the discovery of the sea route towards India. Now it is said there were many Indian traders also, Indian businessmen also over here who helped in the Arabian Sea, who helped Vasco da Gama reach India. बीच में काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन थे जो ट्रेड कर रहे थे सी रूट के थ्रू, एंड दे वर इंडियन बिजनेसमैन हु वर ट्रेडिंग थ्रू द सी रूट, एंड दे हेल्प्ड वास्को द गामा टू रीच इंडिया। बट बेसिकली द क्रेडिट गोज टू वास्को द गामा ओनली बिकॉज दिस इंटायर रूट वॉज डेवलप्ड
वॉज एक्सप्लोर्ड बाय वास्को द गामा। यहाँ अरेबियन सी में आते आते इंडियंस मिल गए इनको कुछ जो इनको भारत तक लेकर आए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ बिजनेसमैन एंड द गुजराती ट्रेडर्स वर ऑल्सो ट्रेडिंग वाया द सी रूट, ओके, बट द क्रेडिट विल नॉट गो टू गुजराती ट्रेडर्स, दिस होल एंटायर रूट वॉज वास्को द गामाज डिस्कवरी, ये तो इनकी डिस्कवरी थी ना, ठीक है। तो इंडियंस ने तो इनको इंडिया तक आने का रास्ता बताया, मतलब गुजरात के कोस्टल एरियाज में जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इनकी शिप को रास्ता बताया कि यहाँ से आप इंडिया में एंटर कर सकते हो। बाकी ये जो केप ऑफ गुड होप है इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो पूरा वास्को द गामा को जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। सो नाउ वास्को द गामा कम्स इनटू इंडिया एंड व्हेन ही लैंड्स इनटू इंडिया ही इज वेलकम्ड इन केरला बाय द लोकल किंग नेम्ड ज़ैमोरिन। यहाँ पर एक लोकल राजा हुआ करता था, देयर वाज अ वेरी लोकल किंग ओवर हियर, स्मॉल किंग Zamorin, who welcomed him. Now why he was welcomed? Now you will wonder, ma'am, why we were welcoming the Europeans? Because they came as traders. They were not coming to attack us. हमें अटैक करने थोड़ी आ रहे थे. They were coming here to trade, right? And if they are coming to trade, obviously the king will be benefited. अगर कोई आपके एम्पायर में ट्रेड करने आता है आप उसको धक्के मार के थोड़ी भगाओगे, आपको तो फायदा हो रहा है ना। When he is trading, he will give you taxes. जो भी वो ट्रेड करेगा आपको टैक्स देगा। ही विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर सिटी, इन योर स्टेट, आपके स्टेट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज बूस्टिंग अप योर इकोनॉमी, सो दैट इज व्हाई ही वाज वेलकम्ड। ज़ैमोरिन, ही वेलकम्ड वास्को द गामा बिकॉज ही केम एज अ ट्रेडर, ही डिड नॉट कम हियर एज अ रूलर, ठीक है। पॉइंट क्लियर? डाउट इज क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सो नाउ वास्को द गामा's अराइवल, he was a Portuguese explorer that you have to remember and he became successful in discovering the sea route. अब जल्दी से बताओ कौन से ईयर में इंडिया आते हैं ये? In which year he reached India? Let me know in the comment section. Correct answer है 1498, 20th May 1498. देखो, if you remember the date and month, that is a plus point for your mains. अगर आपको मंथ और डे याद रहता है ना तो आपके मेंस के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। बट अगर नहीं याद रहता तो ईयर याद रखना। इफ यू कैन नॉट रिमेंबर द मंथ और डेट, नो इश्यूज, रिमेंबर द ईयर, दैट इज इट, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं वास्को द गामा के अराइवल की। सो नाउ ओवर हियर द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, ठीक है, ही केम टू इंडिया, वास्को द गामा, एंड ही रियली डिड चेंज द वर्ल्ड बिकॉज व्हेन ही केम टू इंडिया, यहाँ पर आप देखोगे दिस पाथवे दैट ही डिस्कवर्ड, ये जो केप ऑफ गुड होप है, this sea route that is discovered, that same sea route was used by other Europeans also, ठीक है। the other Europeans who could not enter India through the land route because it was blocked by the Arabs, जिसको अरब्स ने ब्लॉक कर दिया था इसलिए वो लैंड रूट के थ्रू नहीं आ पा रहे थे। the same Europeans now they started following this new route discovered by Vasco da Gama, and following Portuguese we had the Dutch also, we had the Danes also, we had the Britishers, the French, all of these Europeans followed the same route, and they also saw that Vasco da Gama was earning 60 times more profit in India, ठीक है। he used to purchase goods from India, भारत से गुड परचेज करते थे, used to purchase the spices, and then he used to sell that same spices, those same spices to the other countries at 60 times, ठीक है, द प्रॉफिट, एंड ही वॉज अर्निंग 60 टाइम्स द प्रॉफिट। यानी कि मान लो उसको पड़ा 100 रुपये का कोई स्पाइस, वो इसका 60 गुना ज़्यादा इस पर प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। अपना एक कॉस्ट भी वसूल रहा था और उसके ऊपर एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट भी पॉकेट में रख रहा था। सो ही अर्नड 60 टाइम्स द प्रॉफिट एंड दैट वॉज नोटिस्ड बाई द अदर यूरोपियंस ऑल्सो। सेम चीज़ नोटिस की बाकी सभी यूरोपियंस ने, and when the other Europeans noticed it, they also became greedy, all the more greedy. बाकी यूरोपियंस में भी लालच आ गया। Always remember, greed is the first sign of your fall. आपके पतन का, आपके डिक्लाइन का, आपके फेलियर का पहला साइन होता है ग्रीड, ठीक है। Always remember to remove greed from your system. अपने सिस्टम से ग्रीड निकाल दोगे तो अच्छा ही करोगे, और ग्रीड रखोगे तो जो भारत के साथ इन सब ने किया वही आप किसी और के साथ करोगे, ठीक है। So here, as the demand of spices was increasing, the Europeans were able to generate huge amount of profit for themselves. Okay, and when he came to India, जब ये भारत में आते हैं, he was followed by the other rulers also, the other European traders also. In the initial beginning, starting में क्या होता है, all the businessmen were coming to India. यहाँ पर कोई ruler नहीं आ रहा था, only the business people were coming to India. All the European business people were coming to India. And when the Portuguese businessmen were earning great amount of profit, ठीक है,
देयर किंग ऑल्सो गेव देम परमिशन टू परमानेंटली स्टैब्लिश देमसेल्व्स इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पोर्टुगीज के जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने पोर्टुगीज बिजनेसमैन के प्रॉफिट को देखने के बाद उनको परमिशन दे दी कि आप वहाँ पर परमानेंटली एज बिजनेसमैन सेटल हो जाओ, सेटल योरसेल्फ परमानेंटली, एंड इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम मी आई विल सेंड द हेल्प, इफ यू रिक्वायर मिलिट्री हेल्प आई विल सेंड इट। आपको मिलिट्री हेल्प चाहिए मैं दूंगा, आपको नेवी की हेल्प चाहिए मैं दूंगा, यू वांट शिप्स आई विल सप्लाई शिप्स। ठीक है, बट मेक प्रॉफिट इन इंडिया, because if the businessman is creating profit in India, generating profit in India, it's beneficial for the country's government also। मान लो इंडियन बिजनेसमैन न्यूयॉर्क में जाके अपना कोई बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, the businessman is based in India only, but his office or headquarter or his any other branch is opened in New York also. Whatever profit that will be generated, he will be paying the taxes over here, plus the relation between both the countries will be स्ट्रेंथन अप, दोनों कंट्रीज की रिलेशन भी बढ़ेंगी और यहाँ जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा गवर्नमेंट को भी मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम इंडियंस ने ना ये नहीं समझा, वी इंडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द यूरोपियन नेशंस, वी वर थिंकिंग दैट दे आर जस्ट अ ट्रेडर्स, सिर्फ ट्रेडर्स हैं, वी कुड नॉट सी देयर ग्रीड, हम इनके ग्रीड को, लालच को नहीं देख पाए। एंड व्हेन वी सॉ देयर ग्रीड इट वाज यू नो इट वाज टू लेट। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक हमें पता चल पाता काफी देर हो चुकी थी। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वास्को द गामा, दिस इज द रूट दैट ही यूज्ड टू कम टू इंडिया। आप अपने मेंस में ना ये डायग्राम, रफ डायग्राम भी बना सकते हो, इट विल फेच यू बोनस मार्क्स। सो व्हेन वास्को द गामा ही केम टू इंडिया, ही वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ डॉम बाय द किंग। डॉम का मतलब हीरो, ठीक है, इसका मतलब होता है हीरो। सो व्हेन ही केम टू इंडिया, जब ये भारत आते हैं तो इनको टाइटल मिलता है इनके राजा के द्वारा डोम, बिकॉज इन हिज कंट्री बिकेम वेरी फेमस, ही एक्सप्लोर्ड अ न्यू कंट्री। भाई वास्को द गामा ने पहली बार ये नेविगेशनल रूट एक्सप्लोर किया, ठीक है, भारत में एंटर किया, ही एंटर्ड इनटू इंडिया, ही एक्सप्लोर्ड दिस न्यू सी रूट, सो ही बिकेम अ हीरो, ओवरनाइट हीरो इन हिज ओन नेशन। पोर्टुगल में ये अपने ही राज्य के हीरो बन गए थे। So he was given the title of Dom. When he came back with the spices, with all the resources from India, he was welcomed like a grand hero. अपनी कंट्री में जब ये वापस जाते हैं तो इनका हीरो की तरह स्वागत होता है। एंड ही ऑल्सो अर्नड 60 times मोर प्रॉफिट, जो भी इस पूरे एक्सपीडिशन में खर्चा हुआ था उससे 60 गुना ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, so that is why it is said that he was a very shrewd, very clever businessman. And this टाइम पीरियड 1400 का ये जो टाइम पीरियड है, 1500 का ये जो टाइम पीरियड है, इट इज़ नोन एज द एज ऑफ डिस्कवरी। रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ डिस्कवरी। वाई इट इज नोन एज एज ऑफ डिस्कवरी? बिकॉज पोर्टुगीज डिस्कवर्ड इंडिया एंड यूरोप, अदर यूरोपियंस ऑल्सो फॉलोड द सी रूट एंड डिस्कवर्ड इंडिया एंड इट्स रिसोर्सेज। सभी लोगों ने, ठीक है, भारत को डिस्कवर किया, भारत को के रिसोर्सेज को डिस्कवर किया। दैट इज वाई इट इज नोन एज एज ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? चलो, अब बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज पर्सन, दैट इज पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 13th September 1500, year is 1500, the Portuguese explorer Pedro Alvares Cabral, he arrived again at Calicut in Kerala. Why did he come? He arrived here to establish a factory. ठीक है, and this factory was considered as the first European factory in India. पहली यूरोपियन फैक्ट्री जो भारत में स्टैब्लिश हुई थी वो पोर्टुगीज ने करी थी। एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन कैलिकट बाय, किसने इसको स्टैब्लिश किया था? इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन कैलिकट बाय द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। दिस लाइन यू हैव टू रिमेंबर, ये नाम आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, एंड द ईयर यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में कहाँ स्टैब्लिश हुई एंड कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, और किसने स्टैब्लिश करी, हु स्टैब्लिश्ड इट, व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड, इन विच ईयर इट वाज स्टैब्लिश्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो ही वॉज अ Portuguese nobleman, he was a businessman, explorer, navigator, and he is remembered as the person who discovered Brazil. ये उस किस नाम से जाने जाते हैं? ये एक ऐसा एक्सप्लोरर थे जिन्होंने ब्राज़ील को डिस्कवर किया था। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस पॉइंट को लिख रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज दैट डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड द ब्राज़ील।
and he was appointed by the King of Portugal, Manuel I, to travel to India on the sea route established by Vasco da Gama and establish trade relations with India. Vasco da Gama, when he went to India, he purchased many things from India, he sold many things to India. When he went back, जब ये वापस जाते हैं वास्को द गामा, उसके बाद ये और बाकी के नेशंस को एक्सप्लोर करते हैं. बट द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, द पोर्टुगीज किंग, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इंडियाज रिसोर्सेज, इंडियाज रिचनेस. सो दैट इज वाई फॉर्मली ही अपॉइंटेड पेड्रो कैब्रल, इन्होंने पेड्रो कैब्रल को अपॉइंट किया, दैट गो टू इंडिया, स्टैब्लिश अ फैक्ट्री, ऑफिशियल फैक्ट्री ओवर देयर एंड ट्रेड. वट एवर यू विल अर्न फ्रॉम द ट्रेड, टैक्स के रूप में थोड़ा पार्ट हमको दोगे. सम पार्ट ऑफ दैट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स यू विल बी पेइंग टू अस. पॉइंट क्लियर. तो पहली फैक्ट्री होती है केरला में, फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री, एंड इट वॉज पेड्रो एल्वारेज कैब्रल हु वॉज सेंट टू इंडिया टू स्टैब्लिश दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री. नाउ हियर व्हाट वाज द एलिमेंट, व्हाट वाज द रिसोर्स दैट वाज बीइंग ट्रेडेड अ लॉट. ठीक है. सो नाउ द रिसोर्स दैट दे वर यूजिंग, दैट दे वर ट्रेडिंग विद वाज स्पाइसेस. यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे ना जिनसे वो ट्रेड कर रहे थे, वो थे आपके स्पाइसेस. द स्पाइस ट्रेड वॉज वेरी प्रोमिनेंट. यहाँ पर स्पाइस ट्रेड, स्पेशली द ब्लैक पेपर, बिकॉज ब्लैक पेपर वॉज यूज्ड अ लॉट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द मीट. मीट को, जो कि यूरोपियंस का स्टेपल डाइट है, मीट वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ यूरोपियंस, सो दैट वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियंस टू ब्लैक पेपर वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियंस टू प्रिजर्व देयर मीट. सो ब्लैक पेपर वॉज वेरी फेमस, इट वॉज हाईली इन डिमांड. तो कैलिकट में कैपिटल आते हैं, स्पाइस ट्रेड अपना एस्टैब्लिश करते हैं, पहली फैक्ट्री ओपन करते हैं यहाँ पर. एंड आफ्टर 2 months, फॉर द फर्स्ट 2 months द फैक्ट्री वॉज गोइंग ऑन वेरी वेल, स्मूथली सब कुछ हो रहा था. बट आफ्टर द 2 months ऑफ ऑपरेशन द फैक्ट्री वॉज अटैक्ड बाय 500 men. ठीक है. एंड हु अटैक्ड, कौन था जिनको थोड़ी सी जलन हो रही थी, वो थे अरब्स. द अरब्स वर जेलस ऑफ यूरोपियंस. They had blocked the land route, इन्होंने लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया था. Still the Europeans came to India through the sea route, सी रूट के थ्रू आ गए. तो अरब्स को लगा एक रास्ता बंद किया, ये दूसरे रास्ते से आ गए. We closed one door and they opened another door. So they were highly jealous and they were making huge profit also. Plus Indians were also befriending them. भारतीयों को भी शुरू में ये यूरोपियंस अच्छे लग रहे थे. So the Arabs were very jealous. They thought we have another competition, right? And we do not like competition. So that is why they attacked on the Portuguese establishments. इनके factories पे attack करना शुरू कर दिया. It was the attack which was done by the rivals, that were the Arabs. Okay? And the Portuguese also had a traditional rivalry with the Arabs. ठीक है. Religion के basis पे इनकी rivalry तो थी Arabs के साथ. ठीक है. Islamic religion and the Christian religion, English religion, इन दोनों के बीच में घमासान वैसे ही था. On the religious and cultural basis they were already fighting. Now they were fighting economically also. अब इनकी rivalry economic rivalry हो गई. And 50 Portuguese people were killed in this war. इस छोटे से अटैक में, छोटे से वॉर में 50 पोर्टुगीज लोग थे जिनकी मौत हो गई. ठीक है. So it is said that some of the local Indians also supported the Arabs, who were incited by the Arabs. Arabs ने कुछ Indians को भी भड़का दिया था, तो उन्होंने भी इस अटैक में हेल्प किया. That is why the Portuguese military came to India. ये अरब्स ने अटैक किया ना पोर्टुगीज एस्टैब्लिशमेंट्स पे, तो वहाँ के राजा ने बोला ये क्या बात हो गई, These are our factories in India on which you have attacked. So now we will send our military. उनको बहाना चाहिए था. They were waiting for an excuse to send their military in India. ठीक है. I told you when Vasco da Gama came to India, the Portuguese king asked him, if you need any military support from us, we are ready to give you. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब पोर्टुगीज आते हैं, ठीक है, इंडिया में वास्को दा गामा आते हैं, तो पहले से ही पोर्टुगीज के राजा ने बोला था भाई तुमको जो हेल्प चाहिए तुम बताना, मैं मिलिट्री हेल्प दूंगा. बट वास्को दा गामा सेड आई डोंट नीड एनी मिलिट्री हेल्प. बट हियर अंडर द रूल ऑफ पेड्रो Alvarez Cabral, when the factories were attacked, the king got an excuse. राजा को मिल गया excuse. Now he said, now you require military help. अब तो आपको military help चाहिए, ठीक है? So I am sending the military. So he sent his military, to India. अब इन्होंने भारत में अपने military soldiers जो है भेज दिए, ठीक है? And that is how the other Europeans also copied the same thing. बाकी यूरोपियंस अपनी अपनी आर्मी लेकर क्यों आते हैं, क्यों वापस आर्मी को बुलाते हैं? क्योंकि यहाँ पर पोर्टुगीज का एग्जाम्पल देख लेते हैं. पोर्टुगीज वर दी वंस हु लेड द एग्जाम्पल्स. इट वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू कोलोनाइज इंडिया. इन्होंने भारत के गोवा रीजन को कोलोनाइज कर लिया था.
दे कोलोनाइज्ड द रीजन गोवा, ठीक है, point clear. So that is why it is said that Portuguese were the first European country to colonize India. Please remember this for your preliminary examination. इसको याद रखना, बच्चों को अगर ये नहीं पता तो वो ब्रिटिशर्स का नाम लेते हैं. The students who do not know this fact, they say that the Britishers were the one who colonized us. No, it was first the Portuguese. पहले आपके पोर्टुगीज थे जिन्होंने कोलोनाइज किया था, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डच, अब बात करते हैं डच की. Now when we talk about the Dutch, they were not very good traders. ये काफ़ी अच्छे traders भारत में तो नहीं थे. In India their trade was failing, but in Indonesia they were very good, brilliant traders. Indonesia छोटा सा island है, ठीक है, वहाँ पर तो इनका trade अच्छे से चला. But in India their trade could not flourish. ठीक है, यहाँ पर इंडिया में इनका जो trade था वो flourish नहीं हो पाया. Because of which they were, removed by the Britishers only. Britishers ने ही इनको निकाल के फेंक दिया था यहाँ से. So when it comes to Dutch, जब हम डच की बात करते हैं, they established their factories in India, but they were more focused on spreading their religion. इनका जो सारा फोकस था ना वो अपने रिलीजन को establish करने पर था. They were more focused on establishing their religion in India. That is why in the areas of Bengal, in the areas of Madras, write it down, in the areas of Odisha, Andhra Pradesh, दे स्टैब्लिश्ड देयर चर्चेस. इन्होंने यहाँ पर अपने जो चर्च हैं उनको स्टैब्लिश किया, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. नाउ डच की जब हम बात करते हैं, यू हैव टू लुक एट अ मैप. ये आप मैप देख रहे हो सभी बच्चे, प्लीज लेट मी नो इफ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, मैप दिख रहा है. तो ये जो रीजन है, दिस रीजन ओवर हियर, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, हियर वी फाइंड द डच स्टैब्लिशमेंट्स, डच फैक्ट्रीज. यहाँ पर हम देखते हैं डच की बिजनेस फैक्ट्रीज. इन कोचिन जो आपको डी दिख रहा है ना, यहाँ पर डी मीन्स डच. देन इन कोलंबो, यहाँ पर भी इन्होंने फैक्ट्री खोली थी, ठीक है. देन ओवर हियर वी हैव नागापट्टनम, यहाँ पर हमारे पास नागापट्टनम है, ठीक है. फिर आप यहाँ देखोगे, आई विल जस्ट जूम द मैप, ठीक है. ओवर हियर वी हैव ट्रांकबार, यहाँ पर ट्रांकबार है, दिस इज जफना, ठीक है, दिस इज तिरुनोमल्ली. तो आप इधर देख सकते हो कि दीज एरियाज, सेंट डेविड, these are the areas where the Dutch for the first time established their factories. यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी हैं. एंड ये जो एरियाज हैं ये बहुत लिमिटेड एरियाज हैं. these are very limited areas, okay. ये फैक्ट्रीज आपकी डच की हैं, ये आपको याद रखना है. देन ओवर हेयर ऑल्सो वी हैव सीरमपुर, कैलकाटा के आसपास हमारे पास सीरमपुर भी है, ठीक है. यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ आपको सीरमपुर भी दिखेगा. So these were the regions, but their domination was in the southernmost part of India. ये आपको याद रखना है. You have to remember that their domination was in the southernmost tip of India. ठीक है. तो ये थे आपके डच के establishments, but they were more focused on establishing their religion, spreading their religion. That is why their trade could not last for a long period of time. इसलिए इनका जो ट्रेड है वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया. Plus in 1623 they were defeated by Britishers. 1623 में इनको ब्रिटिशर्स ने डिफीट भी किया था, ठीक है. So that is the reason why they were कन्फाइंड टू इंडोनेशिया. इसलिए ये यहाँ से अपना पूरा ट्रेडिंग बिस्तर बांध कर इंडोनेशिया चले जाते हैं, ठीक है. अब बढ़ते हैं ब्रिटिश रूल की तरफ. अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट ओवर हियर डेन्स, जब हम यहाँ पर डेन्स की बात करते हैं ना, आई विल शो यू द इमेज जो हमने यूज की थी. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, तो यहाँ हम देखते हैं डेन्स को. व्हेन वी टॉक अबाउट डेन्स, दे केम हियर नॉट एज ट्रेडर्स बट एज रिलीजियस प्रीचर्स. ये यहाँ पर ट्रेडर्स की तरह नहीं आए थे, रिलीजियस प्रीचर्स की तरह आए थे. So that is why we do not study about them a lot in history. हम इनके बारे में ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, ठीक है, because they could not last in India for long period of time. मैक्सिमम 2-3 साल तक ही इंडिया में टिक सके, ठीक है. उसके बाद इन्होंने मिशनरीज बंगाल में खोल ली थी. They established their missionaries in Bengal. That is why they did not last in India for long period of time. Okay. Now coming on to the Britishers. Now what kind of question they can ask you in GS paper 1? पेपर 1 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? दे कैन आस्क व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडिया इन यू कैन से द 16th और 17th सेंचुरी. 16th-17th सेंचुरी में इंडिया का स्टेट क्या था? When we talk about the state, we know that the Mughals were ruling in India. 17th सेंचुरी में आपके मुगल्स का ही रूल था इंडिया में. And Aurangzeb was the most cruelest of the Mughal kings who was established in India in the 17th century.
16 to 17th century was the time period of Aurangzeb. मुगल रूल था, there was मुगल रूल, all the other independent kingdoms were very small in size, मुगल्स were dominating, मुगल्स पूरी तरीके से dominate कर रहे थे, ठीक है. So when we talk about Aurangzeb, in 1707 he dies. 1707 में इनकी हो जाती है मृत्यु. ओके, एंड व्हेन वी लुक आफ्टर द लेटर मुगल्स, जब हम लेटर मुगल्स को देखते हैं, आफ्टर औरंगजेब हिज सन्स केम, इनके बेटे आते हैं, उनके बेटे आते हैं, तो लेटर मुगल्स आर नोन एज द वीकेस्ट मुगल रूलर्स. लेटर मुगल रूलर्स जो होते हैं वो वीकेस्ट मुगल रूलर्स पाए जाते हैं मुगल्स की हिस्ट्री में. In the history of Mughals, they were incompetent, they were lazy, they did not know a word about administration and they were weak. कमज़ोर थे, आलसी थे, एडमिनिस्ट्रेशन का एक शब्द भी नहीं आता था, ठीक है. तो कह सकते हो they were the reason, the later Mughals after Aurangzeb, the Mughals who came, they were weak and they were the reason why Mughal empire declined. And because there was no central authority in India, इंडिया में कंट्रोल करने वाला जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो थी नहीं, ठीक है. मुगल्स तो आपके वीक थे, देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज वाई इट वॉज ईजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू स्टैब्लिश देमसेल्व्स इन इंडिया. इसीलिए ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान हुआ इंडिया में आके खुद को स्टैब्लिश करना. द स्मॉल रूलर्स दे वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, छोटे छोटे जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है. सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर द ब्रिटिशर्स, फॉर द यूरोपियंस टू स्टैब्लिश देमसेल्व्स कंफर्टेबली इन इंडिया बाय यूजिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिर्फ आपका नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट में यूज नहीं हुआ, ये तब से यूज हो रहा है जब से यहाँ पर यूरोपियंस ट्रेड करने आए हैं. दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वॉज बीइंग यूज्ड बाय द यूरोपियंस सिंस द टाइम दे एंटर्ड इंडिया टू ट्रेड इन इंडिया. पॉइंट क्लियर? सो नाउ ओवर हियर यू विल स्टडी दैट द फैक्टर्स दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. भारत में यूरोपियंस का जो आगमन हुआ उसके पीछे के फैक्टर्स, कारण क्या थे? फर्स्ट रीजन वॉज वीक रूलर्स. Why weak rulers? Because the later Mughals were incompetent. Later Mughals जो थे वो किसी काम के नहीं थे, नाकारा थे. And the regional powers were fragmented. Fragmented मतलब बिखरा हुआ. तो regional powers थी ना, मतलब state wise जो छोटे छोटे rulers थे वो भी आपस में उनकी बनती नहीं थी, ठीक है. they were also, they had no unity. The small regional rulers they had no central authority over them, so there was no unity and they were fighting amongst themselves. हैदराबाद अवध से लड़ रहा है, अवध हैदराबाद से लड़ रहा है, मैसूर से लड़ रहे हैं, बंगाल से लड़ रहे हैं. all the states were fighting amongst themselves for superiority. अपने आप को डोमिनेंट प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग सुपीरियर बनाने के लिए आपस में लड़ रहे थे. इवन द गवर्नर्स वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स. दे वर ऑल्सो एमिंग टू बिकम द किंग्स. जो गवर्नर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी अपने आप को राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे. द जमींदार्स, द रिच जमींदार्स, दे ऑल्सो वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स टू डोमिनेट करने के लिए, स्टेट पे अपने आप को बिठाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जमींदार भी पैसों के बल पर लड़ रहे थे. सो दैट इज वाई ओवर हियर देयर वाज नो इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. अब आप ही बताओ, जब आपकी फैमिली में सब आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहर वाला आराम से फायदा उठाएगा ना. इफ इन योर फैमिली एवरीबडी इज फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, एनी स्ट्रेंजर कैन कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड योर फैमिली, राइट? पॉइंट क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट योर फादर इज नॉट शेयरिंग हिज मनी और हिज डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स विद योर मदर और यू, राइट, और हिज इन्वेस्टमेंट्स विद यू. He is not sharing any details, and the stranger person or the friend of your father who is not very good, he knows about it, he will take advantage. ठीक है. अगर आपके पिता आपसे अपनी इन्वेस्टमेंट, पैसे वगैरह के बारे में कुछ शेयर नहीं करते आपकी माँ से और आपसे, तो बाहर का जो उनका बुरा दोस्त है या जो स्ट्रेंजर है या आपके बाकी रिश्तेदार हैं, इस बात का फायदा उठाएंगे. और इफ योर फादर डज नॉट इवन लिसन टू योर मदर और यू, देन एनीबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन. कोई भी इस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकता है. इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, एनीबडी कैन ब्रेन वॉश यू. अगर आप अपने पेरेंट्स की सुनते ही नहीं हो, ठीक है, तो कोई भी आपका ब्रेन वॉश कर सकता है, ठीक है. सेम थिंग वाज हैपनिंग इन इंडिया. द रीजनल रूलर्स वर नॉट लिसनिंग टू द मुगल्स. द लेटर मुगल्स वर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. दे वर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन. दे वर ऑलवेज अमंग्स्ट विमेन, सराउंडेड बाय विमेन और वाइन. हमेशा शराब से घिरे रहते थे या इधर उधर डांसर से घिरे रहते थे, ठीक है. तो इसलिए अपने डिसीजन नहीं लेते थे. दे वर नॉट लिसनिंग टू द नोबल्स, द मिनिस्टर्स. So there was no effectiveness, no control in India. That is why the Britishers took advantage. इसलिए Britishers ने advantage ले लिया, फायदा उठा लिया. तो गलती किसकी थी? Who was to be blamed? Let me know in the comment section. So the blame was on later Mughals because they were the ones who could not
rule properly, who could not understand the responsibility that they had, जो उनके हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी वो नहीं समझ पाए, ठीक है. Second reason why Europeans came to India and established themselves, vast wealth of India. So greed जो है ये यहाँ पर काफ़ी बुरी बीमारी है. कोई और बीमारी बुरी हो ना हो, जो आपका लालच है ना वो सबसे बुरी बीमारी है. बिकॉज लालच, ग्रीड विल नॉट लेट यू स्लीप प्रॉपरली. आपको सोने नहीं देगा आपका लालच. योर ग्रीड विल नेवर लेट यू टू स्टे कंटेंट इन लाइफ, टू स्टे सैटिस्फाइड इन लाइफ विद एनीथिंग. सो हियर द यूरोपियंस ऑल्सो exploited India ruthlessly because of the vast wealth of India. अगर आप में लालच है तो आप खुद तो जियोगे नहीं ढंग से, दूसरे को भी नहीं जीने दोगे, ठीक है. A greedy person, he himself is always unhappy, always trying to exploit people, but he also keeps his people, his surrounding unhappy as well, negative as well. अपनी surrounding को भी negativity से भर देता है लालची आदमी. So here same thing happened. The Britishers, the other Europeans, when they came to India, they had greed in mind. इनको तो यहाँ पर भाई पैसे ही कमाने थे, ठीक है, पैसे ही बनाने थे. And when they entered into India, they destroyed India. आप देखोगे उनके दिमाग में जो गंदगी थी वो भारत के स्टेट में भी दिखने को मिली, ठीक है. Divide and rule policy, exploiting the women, exploiting the people, comparing people, humans with dogs, right, and saying that dogs and humans are not allowed. All these kind of slogans that they were creating, it was spreading negativity in India as well. Plus spreading hatred on the name of religion, ठीक है, separating people on the name of religion. All of these activities were done by, ये सारी activities किसने की थी, ये ब्रिटिशर्स की देन थी, ठीक है. Now coming on to the third important point पे आते हैं, that is the heavy demand for Indian commodities. What were the Indian commodities which were in demand? First we have spices, then we have cotton, then the precious stones in India जो आपके Himalayan regions में मिलता था, silk, okay, these were the commodities. Gold which were in demand, ये commodities थी जो कि demand में थी, ठीक है. So these commodities attracted the attention of the Europeans to India. ये commodities जो थी इन्होंने Europeans का जो अटेंशन है वो ग्रैब किया. कहते हैं ना कि आप कहीं अंधेरे रास्ते पे चल रहे हो और आपको कुछ चमकती चीज मिल जाए तो आप उसके पीछे जाने लगते हो, राइट. सेम थिंग हैपेंड विद द यूरोपियंस. When they were exploring the countries, the nations in the world, they saw India as a shining golden bird and they got attracted towards India, and that is why they came over here. Now the next reason पे आते हैं, advancement in navigational technologies. Okay, this is the next reason, advancement in navigational technologies. जब हम navigational technologies की बात करते हैं, ये जो रीजन है ना एडवांसमेंट इन नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज, ये रीजन है कि क्यों ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज और फ्रेंच इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे. बिकॉज दे कुड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट ट्रेड रूट और ट्रेड रिलेशन विद इंडिया, बिकॉज लैंड रूट्स वाज कवर्ड बाय अरब्स, सो दे डिस्कवर्ड द सी रूट. एंड हाउ कैन अ कंट्री पॉसिबली डिस्कवर अ सी रूट? सी रूट डिस्कवर करना हंसने खेलने वाली बात नहीं है, ठीक है. आज के टाइम पे तो आपके पास काफी टेक्नोलॉजीज हैं. इन टुडेज टाइम यू हैव नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज, but at that time we had very fewer, nothing as technologies, so it was very tough. Vasco da Gama took 2 years to reach India. Vasco da Gama को 2 साल लगे थे इंडिया आने में, ठीक है. So here their technologies were advancing. तो सी रूट के थ्रू जब वो आए थे, आप सोच सकते हो कि उस समय पर इनकी जो नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज थी वो एडवांस थी. दैट इज वाई दे कुड इजिली एंटर इनटू इंडिया. भले इनको 2 साल लगे बट ये भारत तक पहुंच पाए. इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि बाहर की कंट्रीज को डिस्कवर कर सके, ठीक है. इन इंडिया वी डिड नॉट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी दैट वी कैन डिस्कवर द अदर नेशंस इन द वर्ल्ड, राइट. नाउ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज वी विल नॉट स्टडी अबाउट सम इंटरनेट और जीपीएस सिस्टम. एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज मीन्स शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है. शिप, समुद्री जहाज बनाने की जो टेक्नोलॉजीज थी वो इनके पास थी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेस्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. पोर्टुगीज का तो यही रीजन था, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. तो expansion of market, so the Portuguese over here they were more focused on expanding their market, not just the Portuguese, the French also, ठीक है. पॉइंट क्लियर. एंड द सिक्स्थ रीजन आपका होता है यहाँ पर स्प्रेड ऑफ रिलीजन. यहाँ पर आप लिख सकते हो सिक्स्थ रीजन इज स्प्रेड ऑफ रिलीजन और प्रीचिंग देयर रिलीजन, ठीक है. दैट इज वाई इन गोवा वी सी नंबर ऑफ चर्चेस. गोवा में आप देखोगे कितने चर्चेज हैं, ठीक है. देन इन बंगाल ऑल्सो देयर आर सो मेनी क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन नन्स हु आर लिविंग इन बंगाल. बंगाल में कितने क्रिश्चियन नन्स हैं जो रह रहे हैं, ठीक है. इन महाराष्ट्र यू हैव सो मेनी चर्चेज, ब्यूटीफुल चर्चेज. वहां पर आपके पास कितने यूरोपियन चर्चेज खुले हुए हैं इन महाराष्ट्र.
So this is the reason why they came to India, to spread their religion, to introduce their religion, to convert people. यहाँ पर आके उन्होंने ब्रिटिशर्स ने स्पेशली कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है. So when we talk about the Britishers, जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, we know that the East India Company initially was not a part of British government. आपको पता है ना, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थी. इनिशियली इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, इट वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हु टुगेदर फॉर्म्ड अ कंपनी. ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स थे जिन्होंने मिलकर एक कंपनी खोल ली थी. दैट वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इट वाज अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी. यस, ठीक है. तो वो जो थी वो प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है. नाउ व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड देयर प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी, दे वेंट टू इंडिया, ठीक है. अब वो इंडिया में आते हैं, एंड व्हेन दे वेंट टू इंडिया, जब ये इंडिया जाते हैं, दे क्रिएटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन इंडिया, बिकॉज ऑफ विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इम्प्रेस्ड. जिसकी वजह से जो आपकी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, वो काफी इम्प्रेस हुई. एंड व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इम्प्रेस्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव देम अ चार्टर. इनको एक चार्टर दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. द क्वीन गेव द चार्टर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी that now under our guidance, under our supervision, you are allowed to trade in India. हमारे गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर अब आप भारत में जाकर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है. यू कैन एक्सक्लूसिवली कैरी आउट योर ट्रेड इन ईस्ट. अब इन्होंने ईस्ट में ट्रेड करने के राइट्स दिए थे, ठीक है. ऑन द ईस्ट ऑफ ब्रिटेन दे हैव इंडिया, ठीक है. ब्रिटेन के ईस्ट में क्या आता है, श्रीलंका भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, ठीक है. देन दे हैव इंडोनेशिया ऑल्सो. ऑल दीज डिफरेंट आइलैंड्स, मलेशियन आइलैंड्स जो है वो इनके पास ईस्ट में ही आते हैं. सो द क्वीन गेव देम द राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट. ईस्ट में ट्रेड करने के राइट्स क्वीन ने दे दिए. एंड व्हेन दे केम टू द ईस्ट, दे डिस्कवर्ड इंडिया एंड दे स्टार्टेड देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया ऑन द नेम ऑफ द क्वीन. इन्होंने अपनी महारानी के नाम पर यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया. Now when I say that Queen was the one who signed the charter and Queen was the one who allowed British East India Company to trade, I do not mean that the whole country of Britain was run by the Queen. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंट्री रानी ही चलाती थी, नहीं. Queen was just a signatory. जैसे कि अपनी कंट्री में प्रेसिडेंट होता है ना, in our country we have president who signs the documents, ठीक है, who is the nominal head, जिसको हम nominal head बोलते हैं, ठीक है. Similarly the Queen was also a signatory. सिर्फ ये एक रबर स्टैम्प थी, इनके नाम की मोहर लगती थी पेपर्स पे. द रियल रूलर्स वर दी ब्रिटिश कैबिनेट. जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे ना ब्रिटेन में, तो वो होते थे रियल रूलर. दे यूज्ड टू फ्रेम द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, देन दे यूज्ड टू गेट द अप्रूवल ऑफ द क्वीन, मतलब साइन ऑफ द क्वीन. सारे मेजर डिसीजंस यही लेते थे मिनिस्टर्स ब्रिटेन गवर्नमेंट के, ठीक है. बट जो क्वीन है वो अपनी साइन कर दिया करती थी. दैट इज वाई वी स्टिल क्वीन इज सिटिंग इन ब्रिटेन. क्वीन अभी भी ब्रिटेन में बैठी हैं, बट वो सिर्फ नाम की हैं, ठीक है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है. सो नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी, दे कम टू जहांगीर्स कोर्ट. इनिशियली व्हेन दे केम टू जहांगीर्स कोर्ट, दे वर नॉट अलाउड गिवन द परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया. जब वो इनिशियली जहांगीर के कोर्ट में आते हैं तो उनको ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलती, बिकॉज पोर्टुगीज वर स्टिल रूलिंग इन इंडिया, दे वर स्टिल ट्रेडिंग इन इंडिया एंड दे वर मैनिपुलेटिंग जहांगीर. शुरू में पोर्टुगीज ने जहांगीर को मैनिपुलेट करना शुरू किया, दैट वी आर ट्रेडिंग ओवर हियर एंड दीज ब्रिटिशर्स हैव रॉन्ग इंटेंशंस, ठीक है, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, सो डू नॉट गिव देम द ट्रेडिंग राइट्स. सो इनिशियली जो आपके हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के कोर्ट में, उनको वापस भेज दिया गया. ही वॉज सेंट बैक बाय जहांगीर. ही सेड पोर्टुगीज आर ट्रेडिंग ओवर हियर, आई डोंट वांट टू गिव एनी फर्दर राइट्स टू एनी अदर यूरोपियन नेशन. सो जहांगीर द कैप्टन हॉकिंस, ही वेंट अवे. कैप्टन हॉकिंस चले जाते हैं. लेटर ऑन व्हेन जहांगीर रियलाइज्ड, जब जहांगीर ने रियलाइज किया दैट पोर्टुगीज अलोन दे आर एक्सट्रैक्टिंग ऑल द मनी, ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडिया, ही बिकेम सस्पिशियस ऑफ पोर्टुगीज. इनको लगा कि भाई इफ द अदर यूरोपियंस विल कम टू इंडिया, दे विल मेक प्रॉफिट एंड दे विल गिव देयर टैक्सेस टू मी. जब बाकी के यूरोपियंस भारत में आएंगे तो वो मुझे ही तो टैक्स देंगे, सो आई विल बी बेनिफिटेड. व्हाई आई हैव टू लिसन टू दीज पोर्टुगीज? रियल किंग इज मैं तो रियल किंग हूँ, आई एम द रियल किंग. Okay, so why should I listen to these Portuguese? That is why later on he gave the permission to the English East India Company to establish its factory in India and to rule and to trade in India. भारत में ट्रेड करने के राइट्स इन्होंने ignoring Portuguese, they gave the rights to the English East India Company also. And since then started the rivalry between the Britishers and the Portuguese. वहीं से rivalry शुरू हो जाती है Britishers और Portuguese के बीच में. Now what is the reason behind this rivalry? Competition is not the reason. Competition reason नहीं है. The reason is
that Britishers knew that Portuguese tried to manipulate Jahangir. ब्रिटिशर्स को पता था पोर्टुगीज ने भाई जहांगीर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी हमें यहाँ से भगाने के लिए. सो दैट इज वाई ब्रिटिशर्स दे कंसिडर्ड पोर्टुगीज एज देयर राइवल. ठीक है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ये तो अपने दोस्त नहीं हो सकते, ये तो राइवल है, हमें भगाने की प्लानिंग इन्होंने ही की है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके. नेहा कौन से ट्रैक पे चले गए? नेहा, जहां मैंने आपको बताया था कि यूरोपियंस यहाँ पर रूल क्यों कर पाए, क्योंकि लेटर मुगल्स कमजोर थे. यहाँ पर तो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? वीक रूलर्स जो है वो रीजन है कि यूरोपियंस ने यहाँ पर रूल कैसे किया. रूल, ट्रेड नहीं, रूल. यहाँ पर तो वो ट्रेड करने आ रहे हैं, सिर्फ बिजनेस करने आ रहे हैं, रूल थोड़ी करने के लिए बोल रहे हैं. कंपनी है जो रूल करने आ रही है, ट्रेडिंग करने आ रही है. ठीक है, चलो. सो दीज आर द यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया. ये आप देखोगे सारे यूरोपियन सेटलमेंट्स प्लस साइंस जहां पर दिखेंगे वो आपको इंग्लिश सेटलमेंट्स हैं. दीज आर द इंग्लिश सेटलमेंट्स ओवर हियर, यानी कि इंग्लिश फैक्ट्रीज दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विशाखापट्टनम, कैलकाटा, यू कैन सी. ठीक है, यहाँ आप देखोगे. सो दीज आर द इंग्लिश फैक्ट्रीज विच वर एस्टैब्लिश्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फैक्ट्रीज. ये जो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे थे ये है क्या एक्चुअली? व्हाट आर दीज फैक्ट्रीज? फैक्ट्रीज ओवर हियर मीन्स, मैंने आपको क्या बताया है, फैक्ट्रीज का मतलब यहाँ पर क्या है? फैक्ट्रीज का मतलब जहां पर इनिशियली दे यूज टू स्टोर देयर गुड्स. ठीक है, वॉट एवर गुड्स दे यूज टू परचेज फ्रॉम इंडिया दे यूज टू स्टोर इन द फैक्ट्रीज, देन फ्रॉम द फैक्ट्रीज दे यूज टू शिप इट टू देयर नेशंस. ठीक है, फैक्ट्रीज से, फैक्ट्रीज वर नियर दी कोस्टल एरियाज. फैक्ट्रीज कहाँ होती थी? कोस्टल एरियाज के पास होती थी. सो फैक्ट्रीज से ये लोग अपने नेशन में गुड्स को शिप किया करते थे. सो इनिशियली फैक्ट्रीज वर द प्लेसेस वेयर दे यूज टू स्टोर द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम इंडिया. ओके, एंड वट एवर गुड्स दे वर ब्रिंगिंग फ्रॉम देयर नेशंस दे वर स्टोरिंग देम इन देयर फैक्ट्रीज टू सेल इन इंडिया. ओके, तो अपने कंट्री से शिप्स में गुड्स भर के लेकर आए, यहाँ स्टोर किया, फिर यहाँ पर बेचा. भारत से जो गुड्स खरीदे, स्टोर किए फैक्ट्रीज में, यहाँ से शिप्स में कंसाइनमेंट के थ्रू भेजे और अपनी कंट्री में बेचा. ठीक है, सो इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज व्हिच वर मेंट टू स्टोर गुड्स. सिर्फ गुड्स को स्टोर करने के लिए यूज होती थी फैक्ट्रीज. ठीक है, बेचने के लिए और खरीदने के लिए. देन दे स्टार्टेड अगेन फोर्टिफाइंग द फैक्ट्रीज. इन्होंने फिर फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया. Why did they fortify the factories? Because they started developing rivalry with other countries. पोर्टुगीज के साथ, फ्रेंच के साथ, ठीक है, डच के साथ इनकी राइवलरी हुई. ब्रिटिशर्स दे क्रिएटेड राइवलरी विद पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड डच. दुश्मनी करनी शुरू करी. एंड व्हेन राइवलरी इंक्रीज्ड द पोर्टुगीज यूज्ड टू डैमेज द गुड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डैमेज द गुड्स ऑफ द पोर्टुगीज. जैसे ही राइवलरी बढ़ती है ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के गुड्स को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं. दैट इज वाई दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग द फैक्ट्रीज. फोर्टिफाई का मतलब होता है किले बना देना. दे वर क्रिएटिंग द फोर्ट्स, डिफरेंट फोर्ट्स नियर देयर फैक्ट्रीज. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? सो दे वर यूजिंग देयर सोल्जर्स ओवर देयर. इनके सोल्जर्स यहाँ खड़े होते थे. देयर सोल्जर्स यूज टू स्टैंड एट द टॉप ऑफ द फोर्ट्स टू कीप एन आई ऑन द अदर पार्टी, ऑन द अदर यूरोपियंस. ठीक है, यहाँ पर आपके सोल्जर्स खड़े हो जाते थे, वो नजर रखते थे कोई घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है. नोबडी इज ट्राइंग टू एंटर द फोर्ट्स. ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय देयर गुड्स. सो दिस वॉज द रीजन वाई दी फोर्ट्स वर क्रिएटेड. इसलिए किले बनाए जाते थे ताकि अपनी फैक्ट्रीज को अंदर स्टैब्लिश किया जा सके. आसपास किले बना देंगे, कोई घुस ही नहीं सकता. nobody can enter the forts and damage the goods in the factories. Okay, but when they started fortifying their factories, the local rulers were not happy. जो local rulers थे ना वो खुश नहीं थे. Because in India it is said that the forts are a symbol of power. इंडिया में कहा जाता है कि जो किले होते हैं ना ये आपकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं. They are a symbol of power and only a ruler, only a king can establish forts. ठीक है, सिर्फ एक राजा, एक शासक ही किले बना सकता है. दिस वॉज द नॉर्म इन इंडिया. ये नोशन हुआ करता था इंडिया में कि सिर्फ एक राजा किले बना सकता है. नाउ द यूरोपियंस आर मेकिंग फोर्ट्स, सो द लोकल रूलर्स बिकेम सस्पिशियस. दे सेड दैट द यूरोपियंस आर ट्रेडर्स, दे आर जस्ट ट्रेडर्स. व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो, व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव बाय क्रिएटिंग दिस फोर्ट्स. ये किले बनाकर ये प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि अब ये राजा हैं. राइट, दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट दे आर द किंग्स, दे आर अबव अस. We are not going to let it happen. हम इसको होने नहीं देंगे. So some of the kings in Bengal, some of the local rulers in Bengal
some of the local rulers in Madras, they started protesting against the Britishers. इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर द वन हु स्टार्टेड दिस कल्चर ऑफ क्रिएटिंग फैक्ट्रीज. ब्रिटिशर्स ही थे. अब देखो, आप जितने ज़्यादा ग्रीडी होगे ना, उतने ज़्यादा वल्नरेबल भी होगे, उतने ज़्यादा इनसिक्योर होगे. येस और नो? The more the greed, the more the insecurity, the more the possessiveness, the more the insecurity. आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा अटैच्ड और ज़्यादा पोसेसिव होते हो ना, आप में उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ती है. कोई आपसे छीन ना ले. You are always insecure if you are greedy that somebody will take away that thing from you. Britishers were also insecure. Why? Because they were greedy. They were afraid of the Portuguese, the French and the Dutch that they might harm them. They might, snatch away things from them. और they might manipulate the local rulers, so they were creating forts. और आप जितने ज़्यादा इनसिक्योर होगे, उतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाते चले जाओगे अपनी लाइफ में, उतना अपने आप को लोगों से दूर और अपने आप को उतना कठोर बनाते चले जाओगे. सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द ब्रिटिशर्स. दे वर मोर पोसेसिव एंड मोर अटैच्ड फॉर इंडियाज वेल्थ, सो दे वर मोर इनसिक्योर ऑल्सो. ठीक है, इसलिए इनको ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी. एंड द लोकल रूलर्स न्यू नाउ that these Britishers are up to something wrong. इन लोकल रूलर्स को आइडिया लग चुका था कि ब्रिटिशर्स कुछ तो उल्टा सीधा कर रहे हैं. बट द मेन मिस्टेक ऑफ दीज लोकल रूलर्स वर दे डिड नॉट टेक एनी मेजर स्टेप. दे डिड नॉट गेट यूनिफाइड टुगेदर. ये आपस में यूनिफाइड नहीं हुए. इनको पता चल गया था कुछ गड़बड़ है, बट स्टिल यूनिफिकेशन नहीं था कि आपस में अपनी लड़ाई झगड़े भूलकर दोस्ती कर लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं था. ठीक है, इंडिविजुअली दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. इंडिविजुअली ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो इंडिविजुअली दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट दे वर नॉट यूनिफाइंग टुगेदर. So over here we see the rivalry getting increased, we see the insecurity of the Britishers, it's also increasing. ठीक है, ये भी increase हो रहा है. Now coming towards the French. अब लास्ट में आते हैं फ्रेंच. फ्रेंच आए तो लास्ट में थे, पर ये गए भी लास्ट में थे. ठीक है, the French they came to India at last. ठीक है, but they went from India also. They were the last one to go from India. So the French were the last to come to India in search of trade opportunities, and in 1668 the French East India Company established their first factory in Surat, Gujarat. This point is important for prelims. ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ने से पहले here is a small announcement for all of you. आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है that we have started NCERT batches. हमने NCERT batches जो हैं वो स्टार्ट किए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए. आप लोगों के लिए we have started these NCERT batches and they are starting from 18th of Jan. 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं. These are in bilingual language also, Hindi language also and English language also. 3 batches have been launched in different languages. And you will be getting full NCERT coverage from class 6 to class 12. Even Tamil Nadu NCERT will be covered. Then prelims test series with analysis, PDF study material आपको मिलेगा, flow charts, mind maps, everything you will be given for revision, and there will be dedicated doubt clearing session. अगर आपको कोई भी डाउट है तो doubt clearing sessions भी होंगे. Plus we will be focusing on interview preparations as well. ठीक है, once you clear the mains, आपका interview preparation भी हम ही आपको help करने वाले हैं. So you can subscribe to Unacademy Plus today and you can get 10% discount इफ़ यू यूज़ दिस कोड शर्मा20. अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है. प्लस देर आर कॉम्बो पैकेजेस ऑल्सो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा. ठीक है, मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने को, इवैल्यूएशन करने के लिए भी दिए जाएंगे. वी विल इवैल्यूएट योर आंसर्स एज वेल. वी विल गिव यू स्टडी प्लानर. पर्सनल कोच मीन्स फ्रॉम प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू अ पर्सनल कोच विल बी हेल्पिंग यू आउट थ्रू आउट योर जर्नी. ठीक है, आपके पूरे सब्सक्रिप्शन पीरियड में एक पर्सनल कोच आपको कॉन्टिन्यूसली हेल्प करेगा, मॉनिटर करेगा. ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज फ्रॉम 25th of Jan द प्राइसेज आर इंक्रीजिंग एंड यू कैन यूज दिस कोड शर्मा20 टू गेट 10% डिस्काउंट एज वेल ऑन योर सब्सक्रिप्शन. ओके, नो दैट द फ्रेंच केम टू इंडिया इन 1668 फर्स्ट. इन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, यहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इज ऑलवेज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है. डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज देयर, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी. इन सब की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है. वाई ईस्ट इंडिया? बिकॉज फॉर द यूरोपियंस वी आर एट द ईस्ट. यूरोपियंस के लिए हम उनके ईस्ट में हैं. फॉर अस द यूरोपियंस आर इन द वेस्ट. हमारे लिए लोकेशन वाइज यूरोपियंस वेस्ट में है. ठीक है, सो दैट इज वाई व्हेन दे स्टैब्लिश देयर कंट्री देयर नेम वाज ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी.
Now, like the English, that is like the Britishers, the French also started political dominance. मैंने आपको बताया था Britishers were becoming insecure. I told you that the Britishers, they were becoming very insecure, and just like the Britishers, French were also becoming very insecure. Britishers की तरह ही French भी बड़े ही insecure हो रहे थे, and that insecurity could be seen when they started interfering in the local politics. South India में हैदराबाद, कर्नाटक रीजन, अवध में जो पॉलिटिक्स होता था, ठीक है, इन्होंने उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिक्स, एंड दैट इज वाई देवर लॉन्ग बैटल्स बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रेंच. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जिसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी विच लास्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कम से कम आपका 1780s तक ये राइवलरी चली थी. फ्रॉम 1600s टिल 1780 दिस राइवलरी कॉन्टिन्यूड बिटवीन द फ्रेंच एंड दी Britishers. Plus the French and the Britishers, they were also the rivals in the you can say European region as well. हमारे European region में भी जो French और Britishers थे वो already rivals थे. There was war, Australian War of Succession, 7 year का war था जो चल रहा था यूरोप में, that you will study in world history. And in that war the opposing parties were the Britain and France. Still they continued their rivalry in India as well. India में भी इनका rivalry देखने को मिली. But at the end the French were defeated by the Britishers in the Battle of Bondi Wash. एक बैटल हुआ था, Battle of Bondi Wash 1763, ठीक है. एंड फाइनली इन दिस बैटल, नाम है Battle of Bondi Wash, तो इसमें द फ्रेंच वर वॉश्ड अवे बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है. तो फाइनली इस बैटल में जो फ्रेंच थे वो फाइनली धुल गए, धो दिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो चले जाते हैं. Then this, still for few more years they remained in India. They were in India, they were present in India, but just for as a traders, right? Just for trading purpose. ठीक है, they were not doing their political domination in India after this battle. इस battle के बाद इन्होंने political domination करना छोड़ दिया, politics में घुसना छोड़ दिया, सिर्फ traders बन के रहे और थोड़े सालों में चले गए. But they left India when India was, but they went back partially. ठीक है, पूरी तरीके से भारत से नहीं गए थे. They went back from India after we attained independence. ठीक है, so till we attained independence they were in India just for trading purpose, business purpose के लिए थे. फिर उन्होंने अपनी ना यहाँ पर राज करने की जो सपना था, ड्रीम था, वो छोड़ दिया था. After Battle of Bondi Wash, their dream to rule India, it was vanquished, it was eliminated, ठीक है, by the Britishers. So the one question is, what are the reasons behind the success of English East India Company? So many European countries came to India. Why only Britishers succeeded in ruling India? इतने सारे लोग आए थे भारत में रूल करने, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही क्यों जीत पाए? ब्रिटिशर्स, why did they only stayed in India for long period of time? Why could they only rule in India? First of all, पहला पॉइंट आपका आता है that they did not have British government's interference in their day-to-day working. Unlike the other countries in which the king used to interfere, the English East India Company did not have interference from the British government. British government trusted the English East India Company, so it just signed the charter and gave them the permission, go trade, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है. ब्रिटिश क्वीन ने बोला मैं तुम्हें ये चार्टर बनाकर दे रही हूँ, लिस्ट बनाकर दे रही हूँ, इन कंट्रीज में ट्रेड कर सकते हो, जैसे ट्रेड करना है वैसे करो, साम दाम दंड भेद, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गिव अस द प्रॉफिट. हमें बस प्रॉफिट से मतलब है, तुम टांग तोड़ो, हाथ तोड़ो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है. द वे टू रूल इन अदर कंट्रीज, वी डोंट रिक्वायर एनी डिटेल अबाउट इट. वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, हम तो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है. जस्ट गो देयर एंड डू ट्रेड एंड अर्न प्रॉफिट एंड गिव अस द शेयर ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करो, हमारा नाम का प्रचार करो और हमें प्रॉफिट का शेयर दो. सो इट हैड राइटेड डाउन मिनिमल, the English East India Company had minimal government interference. Interference जो था वो बहुत ना के बराबर था. That is why they could rule over here, smoothly. Plus they could take quick decisions. इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं थी हर बात के लिए. The French East India Company, the Portuguese East India Company, to do anything in India, they required permission from द किंग और देयर गवर्नमेंट. अपने गवर्नमेंट या किंग से इनको परमिशन चाहिए थी. एंड इट टुक टाइम फॉर द परमिशन टू कम, राइट, बिकॉज सी रूट के थ्रू लेटर जाता था, सी रूट के थ्रू आता था. टेलीफोन्स तो होते नहीं थे, ठीक है, मोबाइल फोन्स तो नहीं थे, देवर नो मोबाइल फोन्स, नो नेटवर्क टावर, राइट. सो दैट इज वाई दे हैड टू राइट लेटर सीकिंग परमिशन. देन द लेटर यूज टू टेक 2-3 days टू रीच देयर नेशन. देन इट यूज टू टेक further
10-20 days to come back, जो परमिशन होती थी 10-20 दिन में आती थी. So the time lapse was a lot. Time lapse जो था वो काफ़ी ज़्यादा था. So there was no quick decision making power with the other East India companies. But English East India Company could make any decision any time at any point of period. किसी भी समय कोई भी डिसीजन लेते थे. They had full support, full trust of their government. ठीक है. So it was less controlled by British government. Secondly, sound financial condition. प्रॉफिट्स तो काफ़ी कमा रहे थे, तो फाइनेंशियली दे वर वेरी गुड, फाइनेंशियली बहुत साउंड थे. एंड यू नो इफ़ यू आर फाइनेंशियली साउंड, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो, यू कैन टेक डिसीजंस वेरी स्मूथली, वेरी क्विकली एंड वेरी इफिशिएंटली. जब आप फाइनेंशियली साउंड होते हो ना, आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हो. जब फाइनेंशियली हमारी कंडीशन अच्छी नहीं होती तो डिसीजन लेने में टाइम लगता है. वी हैव टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ एंगल्स. Okay, so they had sound financial condition. Even if they want to attack somebody, they could attack, right? अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री पे या यूरोपियन ट्रेडिंग पोस्ट पे अटैक करना चाहते हैं, कर सकते हैं. फाइनेंशियली दे आर स्ट्रॉन्ग. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, नेवल सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश. नेवल सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश ऑन द नेवी. अगर हम नेवी की परस्पेक्टिव से देखें तो ब्रिटिशर्स वर डोमिनेंट इन दैट परस्पेक्टिव. ठीक है, द नेवल स्ट्रेंथ, नेवी स्ट्रेंथ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. नेवी स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ये नेवी वाइज. ओके, सो दैट इज वाई दे कुड ईजिली एलिमिनेट देयर कॉम्पिटिटर्स. एंड प्लस नेवी जो है वो किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. नेवी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड गिवन देम द परमिशन टू यूज द नेवी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था तुम अपने ही हो यार, तुम्हें कोई डिसीजन लेना हो, मिलिट्री डिसीजन, नेवी डिसीजन, तुम लो, हमारा सपोर्ट तुम्हारे पास हमेशा रहेगा. वी विल नेवर क्वेश्चन यू, वी विल नेवर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. So they had the support of British government, less interference and the navy support. That is why they were stronger than the other countries. And they had skilled leaders, Robert Clive, Lord Curzon. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? जितने भी ये जो गवर्नर्स आए हैं, जर्नल्स आए हैं, इनसे ज़्यादा दिमाग किसके पास था? एक्सपेंशनिस्ट थे नेचर वाइज. दे वर एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर. दे वर कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, सो स्किल्ड लीडर्स थे यहाँ पर. तो दैट इज वाई, दीज आर द रीजंस वाई दे कुड स्टैब्लिश देमसेल्व्स. आप पोज देख लो इनका, ठीक है, मिस्टर का, तो आप देख सकते हो पोज में ही ईगो है कि भाई देख लो हमसे ऊपर कोई नहीं है. ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन जीएस पेपर 1. क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर 1 में? क्वेश्चन कैन बी, ऑल्दो मेनी यूरोपियन पावर्स एस्पायर्ड टू स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया, लाइक फ्रेंच, लाइक पोर्टुगीज, ओनली द ब्रिटिश सक्सीडेड अमंग देम. सभी यूरोपियन पावर सोच रही थी कि हम खुद को स्टैब्लिश करें इंडिया में, बट सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रूल कर पाए, ब्रिटिशर्स ही जीत पाए. एग्जामिन. ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर आप समझाओगे सारे यूरोपियंस को और उनके एम्बिशंस को, फिर आप रीजन दोगे कि क्यों ब्रिटिशर्स ही जीत पाए. ऑल द अदर यूरोपियंस हैड देयर ओन एम्बिशंस टू गार्नर मोर प्रॉफिट, to manipulate and brainwash the minds of local rulers, to establish in themselves in India, but only the Britishers could outpower them. Okay, and Portuguese, they were the first one to come in India. Portuguese जो थे वो बेचारे पहले थे जो भारत में आए थे, but still they could not expand themselves, अपने आप को expand नहीं कर पाए. And Dutch के केस में तो आपको पता ही है वो रिलीजन में ज़्यादा believe करते थे. ठीक है, the Dutch, they did not have the ambitions of ruling India, no. Their ambitions were to earn some profit and to focus on spreading their religion. That's it. देखो कभी कभी ना आपके ambitions पे भी depend करता है. ठीक है, it depends on your ambitions also. What kind of ambitions or dream do you have? In that direction only you will move. So over here the Dutch, they did not have big ambitions of ruling India. They were simple people. They wanted to trade, earn profit, spread their religion. That's it. ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर सारी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? सो आई हैव टोल्ड यू द रीज़न ऑफ ब्रिटिश सक्सेस. मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं ब्रिटिश सक्सेस के कि कैसे ये स्टैब्लिश होते हैं. ठीक है, यहाँ पर कैसे अपने आप को जमा पाते हैं. ऑल दीज आर समरी पॉइंट्स, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसकी समरी पॉइंट्स हैं ये. ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एंड दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ये आपका नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं. आई विल टेल यू द चैप्टर नंबर. इट इज चैप्टर नंबर 4 इन स्पेक्ट्रम. ये चैप्टर नंबर 4 है आपका. ठीक है, तो इधर आप इमेज में देख रहे होगे. इन दिस इमेज यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इन दिस इमेज दिस इज द मुगल किंग. आप यहाँ देखोगे ये है अपने मुगल किंग, एंड दिस इज द मिनिस्टर. ये हो गए आपके नोबल. नोबल मीन्स द मिनिस्टर.
and the king is listening to the minister, and whatever the minister is telling the king to do, the king is keen on interested in listening to that and implementing that. अगर देखो ओपन कोर्ट होता है, जब आप एक सेक्युलर किंग हो, आप एक ओपन माइंडेड किंग हो, तो आप कानों में नहीं सुनोगे किसी की बात, आप ओपनली एक सभा बिठाओगे और डिस्कशन करोगे. इफ यू आर अ ओपन माइंडेड किंग, ओपनली यू विल डिस्कस विद योर मिनिस्टर्स व्हाट कैन बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन. बट व्हेन अ किंग लिसन्स टू हिज मिनिस्टर लाइक दिस, दैट मीन्स ही इज अ वीक किंग. ठीक है, जब एक किंग इस तरीके से अपने मिनिस्टर की बात सुनता है ना, तो इसका मतलब वो सबसे कमजोर है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. दिस इमेज इज अ वेरी सार्कास्टिक इमेज, समझने वाले समझ गए होंगे. ठीक है, इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग किंग, अगर आप स्ट्रॉन्ग किंग हो, यू विल नेवर लिसन टू योर मिनिस्टर लाइक दिस. यू विल डिस्कस मैटर्स ओपनली इन द कोर्ट विद एवरीवन. आप सबके साथ मिलकर मैटर्स को डिस्कस करोगे इफ यू आर अ ओपन माइंडेड किंग. बट हियर यू कैन सी द इमेज, दिस इज द कंडीशन ऑफ लेटर मुगल्स. ये कंडीशन है लेटर मुगल्स की. So when we talk about the condition of India, ठीक है, so when we talk about the condition of India, the first half of 18th century saw the decline of Mughals. Why the decline of Mughals? Mughals का decline क्यों होता है? Because of the weak capability or ruling power of the later Mughals. After Aurangzeb, the later Mughals were the puppets in the hands of the nobles. Nobles means ministers. ठीक है, लेटर मुगल्स जो थे वो अपने ही मिनिस्टर्स के हाथों की कठपुतली बन गए थे. एंड दे वर मिसगाइडेड बाय देयर ओन मिनिस्टर्स. अपने खुद के मिनिस्टर्स के द्वारा मिसगाइडेड थे, भड़काए हुए थे. सो व्हेन वी लुक एट द लिस्ट ऑफ द लेटर मुगल्स, हियर यू विल फाइंड द फर्स्ट वन वाज बहादुर शाह वन. बहादुर शाह जफर नहीं, नॉट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह वन. एंड ही अबॉलिश्ड द जिजिया सिस्टम. जिजिया क्या होता है? दिस इज अ रिलीजियस टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स है उनसे भी लिया जाता था. औरंगजेब imposed this very cruel system of jizya that even if you are a Hindu, you have to pay the Muslim tax. आपको मुस्लिम टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, so this he abolished jizya system. He released Sahu, who was a Maratha ruler from Agra jail, and he recognized Raja Ajit Singh as a ruler of Malwa. Now you will say that ma'am, he was such a good king. ये इतने अच्छे राजा थे. ठीक है, then why he was weak? ये वीक क्यों थे? तो when he was a good king, ठीक है, जब ये एक अच्छे राजा थे, then why he is considered as a weak later Mughal? Because he was half minded king. इनको हम शाह ए बेखबर भी बोलते थे. We also called him शाह ए बेखबर. बेखबर is a person who is not aware about his surroundings. बेखबर वो इंसान होता है जिसको अपने सराउंडिंग्स का आसपास का पता ही नहीं होता. ठीक है, what is happening in his kingdom, in his court, he doesn't know about it. So that means you are bekhabar, you are lost. So he also was known as Shah-e-Bekhabar. Now when he used to get happy with any minister, he used to give him up, right, the huge amount of lands and properties and wealth. जब किसी से खुश होते थे उसको भर भर के सोना देते थे, जमीन देते थे. He used to become very happy with anybody, any person, any minister, any noble person, he used to grant him huge amount of gifts without considering the amount of wealth that he has in his treasury. तिजोरी में कितना सोना है, कितना पैसा है, नहीं पता. भर भर के झोली भर के पैसा दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, without accounting for his own wealth. That is why he was known as Shah-e-Bekhabar. He was not even aware of his own treasury. इनको पता ही नहीं था भैया मेरे पास कितना पैसा है, भर भर के गिफ्ट दे देते थे. ठीक है, so he is also known as लाख बादशाह. इनको हम लाख बादशाह भी बोलते हैं. Why? Because he used to give lakhs of money, right, to the person he used to get happy with. जिससे खुश हो जाते थे उसको लाखों उसके ऊपर लुटा देते थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर. एंड ही नेवर यूज टू टेक बैक हिज गिफ्ट. अपने गिफ्ट को वापस भी नहीं लेते थे. सो दैट इज वाई ही इज नोन एज, दैट इज वाई इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन हु वॉज लेस अवेयर एंड ही वॉज वीक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर. एक एडमिनिस्ट्रेटर वे जो थे उस वे में ये वीक थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज जहांदार शाह. अब जब हम जहांदार शाह की बात करते हैं, ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जहांदार शाह, जब हम जहांदार शाह की बात करते हैं, ही केम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ वजीर जुल्फिकर अली. अब ये जुल्फिकर अली वॉज अ नोबल, अ मिनिस्टर. ठीक है, एंड जहांदार शाह केम टू पावर विद हिज सपोर्ट. दैट मीन्स अगेन ही इज अ वीक किंग. ये भी कमजोर है. क्यों? क्योंकि भाई मिनिस्टर का सहारा लेना पड़ रहा है राजा बनने के लिए.
if you are taking the help of a minister to become a king, that means you are weak, अपनी कोई capability नहीं है तुम्हारी, ठीक है, point clear हो गया. So now the Mughal advisors became very powerful in the court of Jahandar Shah. Why? Because everybody knew that Jahandar Shah is incapable of sitting on the throne on his own self, by his own self. ठीक है, अपने दम पर गद्दी पर बैठना इनकी बस की नहीं है. He can sit on the throne only if he is aided by the ministers. So here from Jahandar Shah's time period the puppetgiri started. यहीं से puppetgiri जो है वो start हो जाती है. Now after Jahandar Shah, all the rulers who came on the throne of the Mughal Empire, they were all the puppets, सब puppets थे. Even when we talk about Farooq Siyar, he became the king with the help of Sayyid brothers. ये तो राजा बने ही थे Sayyid brothers की मदद से, ठीक है. So he also sat on the throne with the help of Sayyid brothers. मोहम्मद अली थे आपके उनमें से एक, ठीक है. तो मोहम्मद अली जो थे वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे फारूक सियार को. सो फारूक सियार when he sat on the throne, again he was one of the most incapable king because under his rule Sayyid brothers were ruling. इनके रूल के अंडर सैयद ब्रदर्स रियल में रूल कर रहे थे. फारूक सियार वॉज जस्ट द नेम फॉर द किंग फॉर द नेम से, सिर्फ नाम के राजा थे, असली कोई अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है. लेटर ऑन सैयद ब्रदर्स किल्ड फारूक सियार. बाद में सैयद ब्रदर्स ने ही फारूक सियार को ख़त्म किया था, ठीक है. सो दीज वर द लेटर मुगल्स. ये थे आपके लेटर मुगल्स. आपको मैंने बताया कि ये जो लेटर मुगल्स थे, दे sat on the throne, they enjoyed the throne, they did not do any kind of administration. कोई पावर नहीं थी इनके पास. all the powers were with the Mughal nobles, ठीक है. and under the ruling period of Muhammad Shah, there was a very famous king, बहुत very famous noble minister who established Hyderabad, जिन्होंने हैदराबाद को establish किया था. his name was असफ अली, ठीक है. तो असफ अली जो थे वो noble थे, minister थे, and he was not happy with Muhammad Shah's rule. He knew that Muhammad Shah is incapable of ruling by himself. इनको पता था मोहम्मद शाह खुद से रूल नहीं कर सकते. So he was very unhappy and dissatisfied with Muhammad Shah. So he said, I don't want to be a part of your Mughal court. मुझे आपके मुगल कोर्ट का पार्ट ही नहीं बनना भाई. I want to establish my own state, my own country, my own independent region. मैं अपना खुद का किंगडम बनाना चाहता हूँ, ठीक है. So he went away from the court and his supporters also went away with him. इनके जितने सपोर्टर्स थे वो भी इनके पीछे पीछे गए. एंड ही स्टैब्लिश्ड हैदराबाद. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. असफ अली ने जो कि मिनिस्टर थे मोहम्मद शाह के, उन्होंने इनके कोर्ट से स्टेप अप किया और हैदराबाद में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. सो दैट इज वाई इन दी इंडिया इन दी अर्ली डेज में अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड. भारत जो था पूरी तरीके से टूट फूट गया था, बिखर गया था, ठीक है. इंडिया गॉट फ्रेगमेंटेड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है. नाउ देयर वॉज राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स. धीरे धीरे रीजनल स्टेट्स बनने शुरू हो गए. वन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल स्टेट इज हैदराबाद. एक एग्जाम्पल है हैदराबाद, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल इज बंगाल. देन वी हैव अवध. देन वी हैव इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ मैसूर. फिर हमारे पास आते हैं स्टेट्स ऑफ मराठास, अफगान्स, जाट्स, राजपूत स्टेट्स, ठीक है, आमेर, जयपुर. ओके, सो दीज आर द स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स विच वर स्टैब्लिश्ड बाय द इंडिपेंडेंट रूलर्स बिकॉज मुगल्स वर इनकेपेबल ऑफ रूलिंग. मुगल्स की तो बस की नहीं थी अब, इसलिए छोटे छोटे स्टेट्स बनने शुरू हुए. ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द नोबल्स स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ओके, बट दोज इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग. ये जो रीजनल स्टेट्स थे ना, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे. वाई? क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं थे? बिकॉज द रीजन इज, मेन रीजन इज दैट पीपल वर कंफ्यूज्ड, ठीक है. लोग जो थे वो कंफ्यूज थे. सम पीपल थॉट दैट मुगल्स आर रूलिंग ओवर अस, ठीक है. Some people thought that now Mughals are not there, Mughals have been vanished, they have been wiped away and these small rulers are going to rule us. कुछ लोगों को लगता था कि मुगल्स हम पर शासन कर रहे हैं. ये छोटे छोटे जो रूलर्स हैं ना, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुगल्स के, ठीक है. दी स्मॉल रूलर्स, फॉर एग्जाम्पल निज़ामुल मुल्क, सादत खान, हैदर अली, दी स्मॉल रूलर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुगल्स. ओके, सो पीपल डिड नॉट नो हु रियली इज रूलिंग अस. हम पर असल में रूल कौन कर रहा है, ये छोटे छोटे राजा या जो मुगल के लेटर मुगल्स हैं वो. So that is why people could not accept the regional states. लोग जो थे वो रीजनल किंगडम्स को, रीजनल रूलर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये जो सादत अली खान आ गए थे, हैदर अली आ गए थे, लोगों को लगा ये सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ नहीं है,
ठीक है. सो बिकॉज पीपल वर कंफ्यूज, देयर वॉज नो यूनिटी इन द स्टेट्स. लोग कंफ्यूज्ड थे तो यूनिटी कहाँ से आ जाएगी, देयर वॉज नो यूनिटी इन द स्टेट. ठीक है, यूनिटी नहीं थी तो पॉलिटी भी आपकी डिसइंटीग्रेटेड थी. द पॉलिटी वॉज ऑल्सो बाइफर्केटेड. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को. एंड दीज रीजनल स्टेट्स वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स. वाई? टू स्टैब्लिश देयर सुपीरियोरिटी. अपनी सुपीरियोरिटी को बनाए रखने के लिए ये रीजनल स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे. ठीक है, दे हैड नो यूनिटी अमंग्स देमसेल्व्स. अब देखो, आपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए और आपस में कोई दोस्ती ही नहीं है. यू हैव क्रिएटेड दीज इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड यू आर फाइटिंग ऑन स्मॉल इश्यूज to establish yourself, to establish your domination, superiority. You are fighting amongst your own selves. भाई बहन में दोस्ती ही नहीं है. ठीक है, तो पूरे दिन घर में झगड़ा रहेगा. यही हो रहा था इन इंडिया. 24/7 there were fights going on between the states. Constant warfare था. ठीक है, so there was no financial superiority. कोई financial development हुआ ही नहीं. लड़ाई इतनी होती थी, financial development कहाँ से होगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. अब पढ़ते हैं व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एट दैट टाइम. फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया में एजुकेशन का क्या स्टेटस था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिंस द लास्ट 10 years every year in prelims UPSC is asking questions about the status of education in the first half of 18th century. इस टॉपिक से UPSC पिछले 10 साल से रेगुलर एक क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, इन 2018 क्वेश्चन केम ऑन वुड्स डिस्पैच. 2018 में क्वेश्चन आया था वुड्स डिस्पैच के ऊपर. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर आए थे. ठीक है, वुड्स, लॉर्ड वुड्स. सो दीज आर द एजुकेशन इज द टॉपिक दैट यू हैव टू प्रिपेयर. अपनी हिस्ट्री में सिंस एंशिएंट टिल मॉडर्न हिस्ट्री यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक ऑफ स्टेटस ऑफ एजुकेशन. ओके, सो नाउ ओवर हियर एजुकेशन वॉज ऑन ट्रेडिशनल लाइन्स. इंडिया में कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं आई थी एकदम. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century बिफोर द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया we did not have modern education. Traditional education था Gurukul system. You must be aware about the Gurukul system. Okay, and here in the traditional education system the language was Sanskrit. यहाँ पर जो language हुआ करती थी वो traditional language थी Sanskrit. It was the famous Sanskrit language that was used. And the famous Sanskrit education centers in India were, India में जो आपके संस्कृत education centers थे वो कहाँ थे. This is important for prelims. We had काशी, जिसको हम वाराणसी बोलते हैं, जो वाराणसी में है. ठीक है, देन वी हैव तिरहुट. तिरहुट इज इन मिथिला. ठीक है, यूपी में. ठीक है, देन वी हैव उत्कला. फिर हमारे पास उत्कला आता है अगेन. ठीक है, देन वी हैव मदरसास. फिर हमारे पास मदरसास थे. ठीक है, दीज वर द एजुकेशन सिस्टम्स इन इंडिया वेयर संस्कृत वॉज टॉट. जहाँ पर संस्कृत को पढ़ाया जाता था, स्पेशली इन वाराणसी. स्पेशली वाराणसी वॉज अ वेरी फेमस एजुकेशन सेंटर. Now the elementary education was widespread in Hindu and Muslims. हिंदूज में स्कूल्स को क्या बोलते थे, पाठशालाज. ठीक है, एंड मुस्लिम्स के स्कूल सिस्टम को हम क्या बोलते थे, मकताब्स. दिस यू हैव टू रिमेंबर. इसको आपको याद रखना है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. सो नाउ इन हिंदी द हिंदी स्कूलिंग सिस्टम वॉज नोन एज पाठशालाज. हिंदी स्कूलिंग सिस्टम को पाठशालाज बोलते थे एंड मुस्लिम स्कूलिंग सिस्टम्स वर नोन एज मकताब्स. रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स. इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा. एंड वी हैड ओपन एजुकेशन सिस्टम. दैट मीन्स देयर वर नो यूनिवर्सिटीज और क्लासेस. स्कूल के रूम्स नहीं थे, ओपन में पढ़ाई होती थी. ठीक है, सो इट वॉज मोर लाइक अ गुरुकुल सिस्टम. ओके, नाउ जब हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम्स की, इन इंडिया देयर वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ पर्शियन ट्रेडिशन ऑल्सो. वाई पर्शियन ट्रेडिशन? क्यों? क्योंकि हुमायूं लेकर आए थे अपने साथ पर्शियन ट्रेडिशन. ठीक है, so that is why we can see the famous Persian education system in Patna which is in Azimabad. Azimabad in Patna we have the famous education center for Persian education. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है प्रीलिम्स के लिए. They can give you the name of the education system, then they will give you the location. ठीक है, याद रखिएगा इसको. On this note we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.